about the differences between the tissues of plants and animals. See students, we all know that plants and animals are two different organisms. Plants are termed as autotrophs because they prepare their own food, and plants have not to move from one place to another in search of their food. They stand still at one place only, and by standing still at that place only, they prepare their food by the process of photosynthesis. Whereas on the other hand, animals are heterotrophs. That means they depend on other organisms for their food, and in search of their food, they have to move from one place to another. So depending on these requirements, the tissues develop in the body of plants and in the body of animals. Talking about plant tissues do not move, so these tissues are predominantly the ones that provide support to the plants so they can stand erect. प्लांट टिश्यूज जो हैं उसका मेन फंक्शन होता है कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके सो दैट जो प्लांट है वो अपनी जगह पर स्ट्रेट जो है इरेक्ट जो है वो खड़ा रहे. ऑन द ऑपोजिट साइड एनिमल्स नीड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स. एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए ऑब्वियसली बिकॉज एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है. दे कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी. So the tissue in the animal body are the ones that can support movement. क्योंकि एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है तो एनिमल बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो इस तरीके के टिश्यूज होते हैं जो एक्चुअली में उनकी मूवमेंट को सपोर्ट कर सके. वो जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करें तो उस फंक्शन को जो है सपोर्ट कर सके. In the plant tissues, the maximum tissues are dead cells because dead cells can also provide mechanical strength to the plants and do not require much maintenance. प्लांट टिश्यूज डेड इसलिए होते हैं क्योंकि जो डेड सेल्स हैं वो भी मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं और ऑब्वियसली जो चीज़ डेड है उसको मेंटेनेंस दैट मीन्स उसको फूड वाटर की रिक्वायरमेंट जो है नरिशमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है. सो प्लांट टिश्यूज जो हैं दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स वेयर एज जो एनिमल टिश्यूज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर पाएं. Only certain parts of plants can grow. The tissues present in such regions are known as the meristematic tissues. आपको पता है प्लांट के कुछ ही पार्ट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रूट्स, लीव्स, स्टेम. तो ये जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं जो ग्रो करते हैं यहाँ पे ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअल में डिवाइड कर सकते हैं और प्लांट की लेंथ एंड प्लांट की गर्थ जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं. Whereas cells in animals grow uniform early and not only in certain regions of the body. Animal body जो है उसका हर पार्ट जो है वो ग्रो करता है इसीलिए अर्ली एजेस में जो सेल्स हैं वो यूनिफॉर्मली यानी कि सिमिलर पैटर्न में जो है ग्रो करते हैं. The structure of plant tissues is not very specialized as compared to animals, whereas अगर हम animals की बात करें तो the organs and organ system in animals are highly developed. Now talking about organ, that what is an organ? As we all know students that cells together form a tissue and tissues together form an organ, and various organs that are involved in performing a specific function forms an organ system. For example, if we talk about digestive system, so digestive system is an organ system and इस digestive system में जो organs involve हैं, for example mouth, our esophagus, our liver, stomach, intestines, ये जो सारे organs हैं ये सारे organs जो हैं एक साथ मिलके digestion के process को complete करने में help कर रहे हैं. So all these organs together form the organ system. Further, let us talk about the plant tissues. If we see, we can divide plant tissues in major two categories.
First is the meristematic tissue and second are the permanent tissue. Meristematic tissues जो हैं they divide throughout the life. Meristematic tissues हमें प्लांट के उन एरियाज में मिलते हैं जो एरियाज प्लांट के ग्रो कर सकते हैं. There we find meristematic tissues and that's why they have the ability to divide. Whereas talking about permanent tissues, जो permanent tissues होते हैं they have lost their ability to divide. वो permanent हो चुके हैं, अब वो आगे further divide नहीं कर सकते हैं. These tissues are further classified in different parts and about all those we are going to study further. Now let us study about these tissues one by one. The first tissue is meristematic tissue. I have told you कि जो meristematic tissue होता है it has an ability to divide throughout the life. ये जो है divide करता रहता है. So this tissue is found in only certain parts of a plant that tend to grow. Plant के वो parts, for example the stem, the roots, जो parts grow करेंगे वहाँ पर सिर्फ हमें meristematic tissue जो है वो मिलता है. Tissues located in such parts are called meristematic tissues and these tissues have the capability to divide themselves and form the new tissues. If we see in the diagram, we can classify the location of meristematic tissue as apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. As we can see, अगर हम apical meristem को देखें तो जो apical meristem है it is actually found in the growing tips of root and the shoot. Where we find apical meristem? Talking about apical meristem, it is found in the tips of stem and root. हमें स्टेम और रूट की टिप्स पे एपिकल मेरिस्टम जो है वो मिलता है. अब क्योंकि ये टिप्स पे मिल रहा है तो ऑब्वियसली जब ये सेल डिवाइड करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट. प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी एंड दिस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ. हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ. क्योंकि ये प्लांट की हाइट इंक्रीज कर रहा है. जब प्लांट की ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज होगी तो प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी एंड दिस इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ. टॉकिंग अबाउट इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है दिस इज फाउंड बेसिकली एट द बेस ऑफ लीव्स. कहाँ मिलता है हमें? बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स. यहाँ पे कौन सा मेरिस्टम मिल रहा है हमें? दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम लीफ जो है लीफ के बेस पे और इंटरनोड्स पे हमें मिलता है. और जब इंटरकैलरी मेरिस्टम जब ये सेल्स जो है डिवाइड करते हैं तो वो लीफ की जो लेंथ है, जो उसका साइज है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. इट एक्चुअली हेल्प्स टू इंक्रीज द ऑर्गन length. Fine. And the third type of meristem that you can see is lateral meristem. Talking about lateral meristem, we can find these lateral meristem. This is the third type of meristematic tissue that is found in the plants. So अगर हम lateral meristem की बात करें, so this is found beneath the bark. ये हमें bark के नीचे मिलता है and it is found in the vascular bundles in stem and root. अब ये जो लेटरल मेरिस्टम है, जब लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड करेगा तो इट विल एक्चुअली इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, दैट इज द विड्थ. हमने पढ़ा जो एपिकल मेरिस्टम है वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है. वेयर एज टॉकिंग अबाउट लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब डिवाइड करते हैं तो ये प्लांट की गर्थ, दैट मीन्स विड्थ जो है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं एंड दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज द secondary growth in the plants.
जब प्लांट की गर्थ जो है, विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है, सो दैट इज टर्म एज द सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट्स। और प्राइमरी ग्रोथ कहाँ हमने देखी थी? प्राइमरी ग्रोथ इज when the apical meristem divides in tips of stem and root and it increases the height of the plant, so that growth is known as primary growth, whereas जब plant की girth, width जो है वो increase होती है, that is termed as the secondary growth in the plants. Now let us study about permanent tissues. So the question is, what happens to the cells that are formed by the meristematic tissues? Now students, the cells formed by these meristematic tissues take up a specific role and lose the ability to divide. ये अपना एक specific role जो है वो pick कर लेते हैं और उसके बाद divide करने की जो ability है, they lose that ability. And as a result, जब उसके अंदर से ability to divide जो है, they lose their ability to divide, so they now form permanent tissues. This process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. जब meristematic tissue जो है एक permanent tissue में change होता है और जब वो एक proper एक function, एक shape और एक size जो है वो gain कर लेता है, this process is termed as differentiation. Talking about the types of permanent tissue, these are basically classified into two types. First are the simple permanent tissue and next are the complex permanent tissues. Simple permanent tissues are of different types, that is parenchyma, chlorenchyma, collenchyma, arenchyma and sclerenchyma. Whereas talking about complex permanent tissues, that are xylem and phloem, and we are going to study about these tissues one by one further. First, let us talk about plant tissues, that is simple permanent tissue and that is parenchyma. अगर हम parenchyma की बात करें बच्चों, तो parenchyma is responsible for photosynthesis, storage of food, gaseous exchange and floating of plants. Parenchyma जो होता है, it basically forms bulk of plant body. प्लांट बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो टिश्यू है जो हमें मिलता है, दैट इज नोन एज द पैरेन्काइमा. ये जो पैरेन्काइमा है, इस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल जो है वो मिलता है. जब क्लोरोफिल ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, ओनली देन इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो स्टूडेंट्स, व्हेन दिस क्लोरोफिल, दिस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा में, एट दैट टाइम इट इज टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा. हम उस वक्त उसको क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा. जब क्लोरोफिल का प्रेजेंस होगा पैरेन्काइमा में और वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो एट दैट टाइम इट इज टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा. एंड वो फूड को बनाने में हेल्प करता है, एज वेल एज वो फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज, ये जो पैरेन्काइमा होता है, ये ज़ीरोफाइट्स के अंदर, जो हमारे ड्राई एरियाज में जो प्लांट्स मिलते हैं, ये ज़ीरोफाइट्स के अंदर ये जो पैरेन्काइमा होता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर. किस चीज में हेल्प करता है? स्टोरेज ऑफ वाटर के अंदर हेल्प करता है. एंड दिस इज इन केस ऑफ ज़ीरोफाइट्स. दिस इज इन केस ऑफ ज़ीरोफाइट्स. एंड नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स. जो पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं विद सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्स हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम. पैरेन्काइमा के टिश्यूज में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर फाउंड इन लीव्स एंड न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस. So here is the diagrammatic representation of parenchyma tissue and you can see that the cells have large intercellular spaces between them. Parenchyma के tissues में large intercellular spaces जो हैं वो present होते हैं and these cells help to maintain the turgidity of the plant. So this is all about parenchyma. Next, let us study about collenchyma. So collenchyma is the tissue that is found in the plants which provide flexibility to plants. Collenchyma जो है वो plants को flexibility and mechanical strength जो है वो provide करता है and that's why collenchyma is also termed as the mechanical tissue. हम इसे mechanical tissue भी
बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। फर्दर कॉलेनकाइमा जो है इट शोज लॉट मेनी फीचर्स ऑफ पैरेनकाइमा, बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय deposition of extracellulose on the corner of the cells. So group of living cells, this is a group of living cells with cell wall made up of cellulose and pectin. और पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा में जो एक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसके सेल्स के कॉर्नर पे जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलोज का डेपोजिशन जो है वो देखने को मिलता है। There are little intercellular spaces present in कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के सेल्स के बीच में जो है बहुत कम जो है स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, and they are present in leaves and stems of a plant. You can also see कि जो कॉलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स हैं they are elongated in shape. और कई बार इन सेल्स के अंदर हमें वी कैन ऑल्सो फाइंड फ्यू क्लोरोप्लास्ट, हमें इसके अंदर कुछ एक क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो भी मिल सकते हैं। सो यू कैन हैव अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द कॉलेनकाइमा टिश्यू ऑल्सो। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है स्टूडेंट्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट्स हार्ड एंड रिजिड। प्लांट्स को हार्ड और रिजिड बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में जो टिश्यू हेल्प करता है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं एंड इट इज हैविंग अ सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। इसकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी हुई होती है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लिग्निन? लिग्निन क्या होता है? लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो बेसिकली प्लांट्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस कि अगर आप प्लांट को स्ट्रेच करोगे तो वो प्लांट को इजीली ब्रेक होने नहीं देगा। तो जो स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यूज होते हैं, जो इसके सेल्स होते हैं, उनके ऊपर जो है लिग्निन की एक लेयर जो है वो मिलती है एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज अ लिग्निफाइड सेल वॉल्स। लिग्निफाइड सेल वॉल्स भी हम इनको बोलते हैं। These cells do not have intercellular space, यानी कि सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। And these sclerenchyma tissues are found in stems, veins of the leaves and covering of nuts and seeds. Further, let us study about chlorenchyma. As I told you earlier also कि अगर पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उस वक्त हम उस पैरेनकाइमा टिश्यू को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो टिश्यूज आर सिमिलर टू दैट ऑफ पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा से बिल्कुल सिमिलर होते हैं टिश्यूज एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट दे कंटेन क्लोरोफिल इन देम and thus are capable of performing photosynthesis in plants. Further, talking about arenchyma. Arenchyma जो है it is also a type of parenchyma only. ये जो टिश्यू है it is found in aquatic plants. ये हमें जो plants water में मिलते हैं उसके अंदर जो हमें parenchymatous टिश्यू मिलता है that is known as arenchyma. Similar to structure to that of parenchyma, but the only difference between parenchyma and arenchyma is that arenchyma have large air cavities in them. क्योंकि इनके अंदर large air cavities होती हैं, इसी वजह से जो plant है वो पानी के ऊपर float कर पाता है. So due to these large air cavities, the aquatic plants can float in water, and this is about arenchyma. Further, let us study about that what is lignin. As I told you that lignin is a complex polymer. ये जो lignin है सेल वॉल पे जो है इसका एक डेपोजिशन मिलता है एंड सेल वॉल ऑफ डेड सेल्स हैव दिस सब्सटेंस एंड thus these types of cell walls are known as lignified cell walls. लिग्निन जो है वो रिजिडिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है और वो प्लांट को इजीली ब्रेक डाउन नहीं होने देता है व्हेन द प्लांट इज स्ट्रेच्ड एंड इट actually acts as a cement for the cells and hardens them. Cells के बीच में ये एक सीमेंट का काम करता है और उनको हार्ड कर देता है. That's why it is providing rigidity to the plants. Further, let us study about epidermis.
एपिडर्मिस जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। जो सेल्स होते हैं उसकी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस एंड इट कवर्स द एंटायर प्लांट। प्लांट के हर पार्ट पे एपिडर्मिस की जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है एंड इट इज अ थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल्स। सिंगल सेल्स की ये एक बहुत ही थिन लेयर है, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा जो डेपोजिशन है वो नहीं होती है। Let us study a lot more about epidermis. Epidermis जो है it can become thick in places with less water to avoid frequent water loss. क्योंकि एपिडर्मिस जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे फॉर एग्जांपल इन ड्राई कंडीशंस जहाँ पे हमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, तो अगर एपिडर्मिस जो है अगर वो थिन होगी तो वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। इसीलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है वहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है इसकी जो थिकनेस है वो वैरी करती है। द सेल्स आर फ्लैट विद नो इंटरसेलुलर spaces and the outer wall of cells जो होती है वो thick होती है, whereas the inner wall of cells जो होती है as you can see in the diagram also वो thin होती है। Now further let us study that epidermis cells often have long hair-like structure in roots. Roots के अंदर epidermis से जो outer layer होती है इसमें लंबे लंबे hair-like structures होते हैं। Now अब इसका फायदा क्या होता है? See, अगर जितने ज़्यादा hair-like structures जो हैं वो roots में present होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो surface area, absorptive surface area जो है वो increase हो जाता है। जहाँ पहले अगर एक single part of the root जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, वहीं अगर डिफरेंट रूट्स जो हैं वो हेयर जो है वो स्प्रेड कर जाएंगे तो हर रूट हेयर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा एंड इन दिस वे ये जो हेयर्स होते हैं दे इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। एपिडर्मिस जो है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय फंगाई, वाटर लॉस और एनी अदर टाइप ऑफ इंजरी। Also, we can find cuticle, that is a water resistant substance. Cuticle जो है हमें एक लेयर क्यूटिकल की जो है वो मिलती है जिसने कवर किया होता है, जो कि एक आउटर कवरिंग है। क्यूटिकल जो है वो बेसिकली प्लांट में से लॉस ट्रांसपिरेशन के थ्रू, प्लांट्स में से रेगुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है दैट इज इवेपोरेशन के थ्रू वाटर का जो है वो लॉस होता रहता है। तो इस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एक वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस जो है वो प्लांट के सरफेस पे हमें मिलता है एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल की जो थिकनेस है अगेन वो वैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे प्लांट्स की बात करें जो ड्राई एरियाज में हमें मिलते हैं वहां पे जो क्यूटिकल की थिकनेस है वो ज्यादा होगी, सो दैट पानी जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू जिसका लॉस हो रहा है उसको कम से कम जो है रोका जा सके एंड नेक्स्ट इज जो पानी है वो ज्यादा जो है लॉस ना हो प्लांट्स में से। Next is stomata. Stomata, you all have studied about stomata in your previous classes also. हम junior classes से पढ़ते आ रहे हैं कि stomata जो है वो plants के अंदर small leaves के अंदर या green parts के अंदर small pores होते हैं जो actual में help करते हैं in the gaseous exchange. Plant के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। ये जो गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में इट एक्चुअली टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड व्हाट आर स्टोमेटा? दीज आर द टाइनी पोर्स दैट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये जो स्टोमेटा है दीज आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स की जो एपिडर्मल लेयर है जो कि हमने पढ़ा कि पूरे प्लांट को कवर करती है, उस लेयर में हमें स्टोमेटा जो है मिलता है। स्टोमेटा अलोंग विद गैसियस एक्सचेंज आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन। पानी का जो इवेपोरेशन के थ्रू जो लॉस हो रहा है प्लांट्स में से वो भी इसी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। सो दीज पोर्स आर एनक्लोज्ड बाय किडनी शेप्ड सेल्स एंड ये जो किडनी शेप्ड सेल्स जो होते हैं दीज आर नोन एज द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा को गार्ड यानी कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और किडनी शेप्ड ये जो सेल्स होते हैं इनका जो मूवमेंट है कि कब ये स्वेलअप करते हैं या कब ये श्रिंक करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द डे एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि कितना वाटर जो है ट्रांसपिरेशन में लॉस होगा नहीं होगा, डे है या नाइट है, उस पर डिपेंड करता है
है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल अप करेंगे या ये जो गार्ड सेल्स हैं वो श्रिंक करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा।